Hello guys, welcome to study material. This is Sapna Yadav. This is our first class of biology. In our previous class, we discussed about syllabus. Today, we will discuss about chapter 6 of biology. We will discuss about life processes. लाइफ क्या होती है? लाइफ इज ए कंडीशन विच डिस्टिंग्विश लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स हम कब किसी ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ एंड ब्रीडिंग. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती, ना ही ग्रोथ शो करती, ना ही ब्रीदिंग शो करती. We see a dog running or a cow chewing cud and a man snarling loudly on the street. We know that these are living beings. But due to fact there are some animals which are alive but cannot find any breathing movement in them. It means कुछ एनिमल्स होते हैं जो अलाइव होते हैं लेकिन ब्रीदिंग मोमेंट नहीं करते. इन दिस वे सम प्लांट्स आर आल्सो अलाइव बट द ग्रोथ इज़ इनविजिबल. इट मीन्स कुछ प्लांट्स होते हैं वो अलाइव होते हैं लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनविजिबल होती है. हियर द मोमेंट इज जस्ट कंसिडर्ड एज द इंडिकेशन ऑफ लाइफ बट नॉट एज बेसिक फैक्टर टू डिफरेंशिएट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. देन हाउ we differentiate living or non-living things. Most of the plants and animals show movement. Movement over very small scale will be invisible to the naked eye. Movement of molecules. The ability to perform the basic life processes differentiate into living and non-living things. The life process can define as the important basic processes performed by an organism maintain and sustain their life. Some characteristics of living organisms. जो हमारे living organisms होते हैं वो मूव करते हैं. Requires food, air and water. Living things can grow. Living things can respond. Living things can respiration, reproduction and excretion. In case of viruses do not show any molecular movement in them. It means जो viruses होते हैं वो कोई भी molecular movement शो नहीं करते जब तक वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते. आता है why the molecular movement needed for life. The molecules movement need for life. The living organisms are well organized structure. They can have tissue have cells have small component in them and so on. It means जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है. जो बॉडी होती है वो सेल फॉर्म करती है और सेल्स फिर टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यू फिर ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ऑल ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम फॉर्म करते हैं. एग्जांपल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम. In order, the nature of living structure is very likely to keep breakdown over time. In breakdown, the organisms will no longer be alive, so the living creatures must keep repairing and maintaining their structure. It means जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नो लॉन्गर अलाइव, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो लिविंग नहीं रह सकते. उसके बाद जो हमारी लिविंग जो स्ट्रक्चर्स होती है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस देयर स्ट्रक्चर. डेफिनेशन. The basic functions performed by an organisms to maintain their life on the earth. Basic life processes: nutrition, respiration, transportation, excretion. हमारा टॉपिक आता है what are life processes. The process in which the organisms are repair and maintenance their job. The process which together perform their maintenance job are life processes.
हमारी 4 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब हम इनके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट होते हैं हमारे न्यूट्रिशन, सेकंड हमारे होते हैं रेस्पिरेशन, थर्डली हमारी ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट होती है हमारी एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है? Since these maintenance processes are needed to prevent damage and break down the energies needed for them, the energy comes from outside the body of individual organisms. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of an organism, which we call food, to the inside, a process we commonly known as nutrition. It means ब्रेकडाउन होता है, उससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सेकेंडली हमारा आता है रेस्पिरेशन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायर ऑक्सीजन from outside the body and use in it process of breakdown of food source for cellular needs when we call respiration. It means food को हमने अंदर लिया, डाइजेस्ट किया, फिर फूड ब्रेक डाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी। थर्ड हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ए transportation system for carrying food and oxygen from one body part to another body part. It means food and oxygen को ट्रांसफ़र करना one body parts to another body parts. This process is known as transportation. Last हमारा आता है excretion. When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts. They are not only useless for the cell of body but could even be harmful. The waste products are therefore needed to remove from the body outside by a process is known as excretion. It means फूड को यूज़ किया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज हुए। नॉट ओनली यूजलेस एंड हार्मफुल, बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव करना बॉडी से, उस दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसके बाद एक टॉपिक आता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of the organism is in contact. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा। जो अमीबा होता है उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन। इसके लिए हमें एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता क्या है? डेफिनेशन: द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स from the high concentration to low concentration. For example, to take a beaker filled with water and small amount of sugar. अब जो अमीबा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना रेस्पिरेशन कैसे शो करता है? अमीबा की इरेगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है। अमीबा के पास लार्ज अमाउंट ऑफ O2 होता है और एटमॉस्फेयर के बाद अमीबा रेस्पिरेशन कैसे करता है? अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, अमीबा के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ O2 रहता है। तो प्रोसेस होती क्या है? ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अमीबा के पास होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 होता है और जो हमारे एटमॉस्फेयर होती है उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 होता है। तो इसमें भी इस प्रोसेस से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसके बाद आता है फूड भी जहाँ ज़्यादा फूड होगा वो जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फूड है वो मूव कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न।
In case of multicellular organisms, all the cells may not be direct contact with the surrounding environment. Thus, the simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. In multicellular organisms, various body parts have specialized in their function they perform. Means हमारी नॉर्मल सी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, जो आउटर सेल्स होती है वो डिफ्यूज़न एक टाइम के लिए कर भी ले, लेकिन हमारी जो इनर सेल्स होती है वो O2 कैसे सप्लाई होगा, फूड को कैसे सप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक फंक्शन को शो करने के लिए। हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वाई इज़ डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। इसका आंसर हमने अभी किया है। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, thus simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. In multicellular organisms, various body parts are specialized in their function they perform. Second, what criteria do we use to decide whether something is alive? It means when an organism show activity, for example drinking, moving, breathing and growth. Second criteria है molecular movement का, इसमें organism have structure, जैसे हम पहले हमारी बॉडी वो सेल्स फॉर्म करती है, सेल्स से फिर टिश्यू से हमारा ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा फंडा है, जो न्यूट्रिशन वाला है वो इसमें हम फूड किस लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस लाइफ। अब तक हमने ओनली टोटल 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। यह हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूट्रिशन। थैंक यू गाइस।